اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو الحمدللہ جو ہے آج ہماری کلاس جو ہے عید کے بعد جو ہے رمضان کے گیپ کے بعد انشاءاللہ جو ہے آج کچھ نئی چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو ہے یہ دیکھیے گا، ہاں یہ پیج نمبر 65 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، دیکھ رہے ہیں ہم پیج نمبر 65 سے پڑھیں گے یہ۔ اور ہم نے یہ جو ہے یہاں تک پڑھ لیا تھا الحمدللہ، الکلمات الجدیدہ یہ سب۔ تو آج جو ہے نا مؤنث والے جو اسماء الاشارہ ہے اور مؤنث کی جو جمع آتی ہے، مؤنث کی جو جمع آتی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے گا با کے اندر آواز آ رہی ہے، آپ لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ ہلو ہلو، میری آواز سب تک پہنچ پا رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو کیونکہ آج الحمدللہ آج جو ہے ہمارے عدنان بھائی کی طبیعت گڑبڑ ہوئی تو وہ گھر سے مرکز نہیں پہنچ پائے، تو گھر سے ہی یہ کر رہے ہیں، ہماری جو اسٹریمنگ ہے۔ تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ تھوڑا سا برداشت کیجیے گا، انشاءاللہ خیر ہوگا پھر، ہے نا۔ جی کوشچن آنسرز کے لیے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو چلیے جو ہے ہم اچھا، تو من ہؤلاء الفتیات، یہ دیکھیے گا کہ اسماء الاشارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ جو ہے اسماء الاشارہ ہاذا اور ہذہ اور اولئک، ہاذا کی جمع ہاذا اور ہذہ، یہ دونوں کی جمع ہؤلاء آتی ہے، ہؤلاء، ہے نا۔ ہم نے مذکر کے لیے پڑھا تھا اس میں اشارہ ہاذا، اور مؤنث کے لیے پڑھا تھا اس میں اشارہ ہذہ، اور ان دونوں کی جمع جو ہے نا ہؤلاء آتی ہے۔ بہت سارے مردوں کے لیے بھی ہم کہیں گے ہؤلاء، اور عورتوں کے لیے یا مؤنث کے لیے بھی ہم جو ہے نا استعمال کریں گے ہؤلاء۔ تو ہؤلاء الرجال بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور ہؤلاء النساء یا الفتیات۔ الفتیات جو لفظ ہے یہ کس کی جمع ہو سکتی ہے بتائیے گا آپ لوگ مجھے، یہ جو لفظ الفتیات ہے کس چیز کی جمع ہے، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ یہ الفتیات جو جمع ہے یہ فتاتن کی جمع ہے، یہ الفتیات جو جمع ہے یہ فتاتن کی جمع ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ من ہؤلاء الفتیات یا مریم، اے مریم یہ سب نوجوان بچیاں کون ہیں؟ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، ان کو فتح اور فتیہ ہے نا، فتیتن اور فتیاتن، ٹھیک ہے نا۔ لفظ ایک فتح پڑھا تھا ہم نے، لفظ فتن، اور اس کی جمع آئے گی فتیتن، اس کی جمع آئی تھی فتیتن مردوں کے لیے، اور فیمیل کے لیے فتاتن ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، اس کی جمع فتیات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ من ہؤلاء الفتیات یا مریم، اے مریم یہ نوجوان بچیاں کون ہیں؟ تو کہا کہ ہن زمیلاتی، یہ سب میری سہیلیاں ہیں۔ زمیل، زمیلہ، زمیل اس کا مؤنث ہے زمیلتن، تو زمیل اور زمیلتن اس کی جمع آتی ہے زملاء اور زمیلات، ہے نا۔ الفاظ کی واحد اور جمع سیکھنا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کلاس میٹ کو کہیں گے زمیل، مرد کے لیے زمیل، اور عورت کے لیے یا مؤنث کے لیے زمیلتن کہیں گے، اور دونوں کی جمع الگ الگ آتی ہے۔ زمیل کی جمع آتی ہے زملاء، زمیل کی جمع کیا آتی ہے؟ زملاء، اور زمیلتن کی جمع آتی ہے یہ زمیلات۔ تو کہا کہ ہن زمیلاتی، وہ یہ سب کو ہیں، کون ہیں یہ سب؟ یہ میری سہیلیاں ہیں۔ تو دوسرا سوال کیا کہ اخواتن، اخواتن کیا یہ سب بہنیں ہیں؟ اخواتن کیا یہ سب بہنیں ہیں؟ تو جواب دیا کہ نعم ہن اخواتن، ہاں یہ سب بہنیں ہیں، نعم ہن اخواتن، جی یہ سب جو ہے نا بہنیں ہیں، ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھئی من ابوہن، من ابوہن ان کے والد صاحب کون ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ ابوہن الشیخ بلال، ابوہن الشیخ بلال، ان کے والد صاحب جو ہے وہ کون ہے؟ شیخ بلال ہے، شیخ بلال ان کے والد ہیں۔
हम, और कह रहे हैं कि उम्मुहुन्ना उस्तादती, उम्मुहुन्ना उस्तादती, इनकी जो वालिदा हैं, इनकी जो वालिदा हैं वो क्या है, मेरी टीचर हैं। उम्मुहुन्ना, ये जो बहनें हैं आपस में, इनकी जो वालिदा हैं उस्तादती, वो मेरी टीचर हैं वो तो, ठीक है ना। तो फिर सवाल किया गया कि आइना बैतुहुन्ना, यहाँ पूछा कि मन अबूहुन्ना, यहाँ पर क्या कहा, मन अबूहुन्ना। यहाँ कह रहे कि आइना बैतुहुन्ना, आइना बैतुहुन्ना, इनका घर कहाँ है, इन सब का घर कहाँ है, आइना बैतुहुन्ना, इन सब का घर कहाँ है। तो जवाब दिया गया कि बैतुहुन्ना करीबुम मिनल मदरसती, इन सब का जो घर है वो करीब है स्कूल से। बैतुहुन्ना करीबुम मिनल मदरसती, इन सब का घर स्कूल से करीब है। तो अब ये देखिएगा ज़माइर इनको क्या कहते हैं हम, जैसे हुन्ना हुन्ना कह रहे हैं कि नहीं, बैतुहुन्ना और अबूहुन्ना, ये मुअन्नस की ज़मीर है। तो अदनान भाई आवाज पहुंच रही है हमारी, किसी की आवाज जो है ना दो चार की एक्टिव कीजिएगा, अगर इंटरेक्ट करना चाहे तो उनके लिए दो चार की आवाज को जी जी एक दो, हाँ जी, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और आपको हाँ कोई सवाल लेडीज की पूछना तरफ, जी लेडीज की तरफ सिस्टर्स और ब्रदर्स दोनों दोनों। ये दोनों की तरफ से एक एक या दो दो जो है ना वो करते, ताकि जो है ना हम उनसे ठीक, पूछे, या अगर वो बनाना पूछना चाहे या हमें वो करना चाहे तो इंशाल्लाह करते हैं ओके अभी, है ना। ओके। तो ये देखिएगा तमारीन, तमरीन है ना, तमरीन नंबर 1 ये है। तो बताइएगा, तो हमने ज़मीरें पढ़ी थी, हमने ज़मीरें पढ़ी थी। तो ज़मीरें कहते हैं हम, ज़माइर किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि उसका घर, मर्द के लिए तो हम कहते हैं बैतुहू, एक मर्द के लिए कहेंगे तो बैतुहू, है ना, और एक औरत के लिए कहेंगे तो बैतुहा, बैतुहू उसका घर और बैतुहा उसका घर, है ना। तो हु और हा, ये इन दोनों के अंदर फर्क आप लोगों के ध्यान में है क्या, बैतुहू और बैतुहा में फर्क आप लोगों के ध्यान में है सबके? जी जी सर। अच्छा, तो अच्छा ये जो है ना बैतुहू मर्द के लिए, मुदक्कर के लिए, और बैतुहा जो है ना ये औरत के लिए, मुअन्नस के लिए। लेकिन जो है ना अगर हमें जमा की शक्ल में यही ज़मीर करनी हो, मसलन बहुत सारे मर्दों की तरफ हमें इशारा करना हो कि उन तमाम मर्दों का घर या उन तलबा का घर, तो हम बैतुहू के बजाय क्या कहेंगे, हम जहन में है क्या आपके? बैतुहुम, जी बैतुहुम, जी बैतुहुम कहेंगे हम, बैतुहुम कहेंगे हम। और अगर औरतों की तरफ इशारा करना हो तो इन सब, बैतुहुन्ना। बैतुहुन्ना, जी बैतुहुन्ना, बहुत अच्छा। तो ये ज़मीरें जो है ना अच्छी तरह ध्यान में बिठानी है हमें, है ना। ज़माइर जो है ना ये प्रोनाउंस है, और ये इसके बगैर छुटकारा नहीं है। जब भी हम बात करेंगे या कोई चीज लिखेंगे तो ये जो है ना, लेकिन इतनी मुश्किल चीज नहीं है, जब हम पढ़ते पे हैं ना तो ये चीजें आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अंदाजा किया होगा अब तक कि हमने तो वैसे एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी डाली हुई आप लोगों के रिवीजन के लिए, तो आपने अंदाजा किया होगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है काफी हद तक आप लोगों ने उसको समझा है ना। तो हम जब जब जो हम आगे बढ़ते हैं तो वो चीजें समझ में आती है। शुरू शुरू में भले मुश्किल लगे लेकिन वो आसान हो जाती है इंशाल्लाह, बाद में जो है ना वो सॉर्टिंग हो जाती है दिमाग में, कि जो है ना क्लियर हो जाती है। तो मेरा घर तो क्या कहेंगे हम, मेरा घर बैती। बैतू, बैती, जी मेरा घर तो कहेंगे बैती। और हम सबका घर तो क्या कहना चाहिए हमें, हम सबका घर बैतुना। बैतूना। बैतुना। जी सारे भाई और सारी बहनें जो है ना याद रखे इसको, कि भाई मेरा घर तो बैती, मेरा घर तो बैती, और हमारा घर तो बैतूना, है ना। तो जुमले जो है ना बनाने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा घर ऐसा है, हमारा जो है ना रोजाना डायरी में 5 जुमले लिखा करें आप लोग, नोटबुक में कुछ ना कुछ लिखा करें। वैसे तो मैं आप लोगों को खुश करने के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिवीजन के वीडियो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह कल जो है एक वीडियो और डालूंगा, तो आपका और अच्छा खासा इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगा। उसमें हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं अब तक, इंशाल्लाह वो मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह, वो मेरे रिवीजन की वीडियो से इंशाल्लाह। तो हमें जो है ना जुमले बनाना चाहिए रोजाना, जो है ना जो 5 जुमले लाजमन अपनी नोटबुक लेके, चाहे गलत ही लिखे लेकिन जो है ना कुछ भी लिखा करें, ताकि जो है ना आपने जो पढ़ा है जमीर एक जगह लिख ले, फिर उनका इस्तेमाल देखे। तो इंशाल्लाह मैं सारी चीजें जो है ना कवर करूंगा इंशाल्लाह, आप लोग फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह रिवीजन वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह, कोई चीज छूटेगी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, तो मेरा घर हम बैती और हमारा घर बैतूना। और अच्छा, हामिद का घर या खालिद का घर या टीचर का घर तो कैसे कहेंगे, टीचर का घर कैसे बैतुहु। कहेंगे, टीचर का घर तो कैसे कहेंगे, टीचर का घर कैसे कहेंगे, टीचर का घर? इसमें जमीर नहीं, लफ्ज मुदर्रिस को इस्तेमाल करेंगे यार। अगर हम अगर हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बैतुल मुदर्रिस से, जी याद रखिएगा कि अगर हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि हामिद का घर या खालिद का घर या टीचर का घर या डॉक्टर का घर, अगर हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि उसका घर और उनका घर
ऐसा कह रहे, तो वहां पर वहां पर जो है ना दमाइर इस्तेमाल होंगी। वहां पर जो है ना ये बैतुहु, बैतुहा और बैतुहुम और बैतुहुन्ना, ये जो दमाइर है वहां पर इस्तेमाल। लेकिन अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं कि टीचर का घर, तो हम कहेंगे कि बैतुल मुदर्रिसी। क्या कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे हम उसको? बैतुल मुदर्रिसी। हाँ, लेकिन अगर हम ये नहीं कह रहे कि भी टीचर का घर, बल्कि यूं कह रहे कि उसका घर। अब हमने टीचर नहीं कहा, डॉक्टर नहीं कहा, इंजीनियर नहीं कहा, हामिद नहीं कहा, खालिद नहीं कहा, आयशा नहीं कहा, फातिमा नहीं कहा, बल्कि वो कहा हमने, उसका घर, इसका घर। तो फिर वहां पर जो है ना ये दमाइर इस्तेमाल हो गए, बैतुहु और बैतुहा और बैतुहुम और बैतुहुन्ना। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह, है ना। तो ये चीजें याद रखना। इसी तरह जो है ना हमने जो तो चार ये चीज, इनको दमाइर कह रहे हैं हम। और जो हादा और हादही और हाउलाए, ये जो है ना इनको इस्मुल इशारा कह रहे हैं हम। इसको क्या कह रहे हैं हम? ये देखिएगा, हादही इसकी जमा भी हाउलाए और हादा की भी जमा हाउलाए, इनको इस्मुल इशारा कहते हैं हम। इनका नाम क्या है? हादे, हादा, हादही और हाउलाए, इनका नाम क्या बताइएगा? अस्माउल इशारा। क्या है इनका नाम? क्या नाम है इनका? जी, याद रखिएगा इसको कि हादा को अगर आपसे ये पूछा जाए कि हादा जो है ना, या हादही या हाउला, ये क्या है, तो हमें उसको, इनको कहेंगे हम, इनका नाम है, इस फैमिली का नाम है। हर एक ग्रुप का नाम होता है, हर एक का ग्रुप का नाम होता है। जैसे कि आप लोग जो है ना व्हाट्सएप में ग्रुप के नाम रखते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, अपने रिश्तेदारों का ग्रुप बनाते हैं, दोस्तों का ग्रुप बनाते हैं, तो उनका नाम रखते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई ना कोई नाम रखते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि ये किसका ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है। तो इसी तरह जो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं, जो भी अल्फाज हम पढ़ते हैं, उनका ग्रुप होता है, ताकि हम उनको समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके, उनको पहचान सके कि इन ग्रुप का नाम क्या है। तो हादा और हादही और हाउलाए या जालिका और तिलका और उलाइका, ये सारे ग्रुप जो है ना, इनका नाम है अस्माउल इशारा। इनका नाम क्या है? अस्माउल इशारा, है ना। और जो है ना हम कह रहे हैं कि हुआ और हुम, है ना। इसी तरह जो है ना हिया और हुन्ना, ये इनको ज़माइर कह रहे हैं। ये जो ग्रुप है ज़माइर का ग्रुप है, प्रोनाउन का। बहरहाल ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हम चीजें पढ़ते हैं तो चीजें धीरे धीरे मजबूत होते रहती है ना, धीरे धीरे मजबूत होती है। अच्छा, ये देखिएगा, मिसाल देखिएगा कि हादिही बिंतुन, मिसाल दी है डॉक्टर साहब ने कि हादिही बिंतुन, ये एक लड़की है। हादिही बिंतुन, ये एक लड़की है। लेकिन बिंतुन की जमा अगर हम इस्तेमाल करेंगे बनातुन, बिंतुन की जमा क्या आती है बताइएगा? बनातुन। बनातुन। अभी हम जो है ना फीमेल वाली जमा पढ़ेंगे। इससे पहले जो रमजान से पहले हमने जो पढ़ा था, वो मुदक्कर वाली यानी मेल वाले अल्फाज की जमा पढ़ी थी हमने, है ना, मुदक्कर वाले अल्फाज की जमा पढ़ी थी। और हम आज जो है ना, या आगे जो है कुछ फीमेल वाले अल्फाज की जमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है ना मुदक्कर और मुअन्नस वाले अल्फाज की जमा जो है ना हमारे पास हो जाए, है ना। तो हादिही बिंतुन, और बिंतुन की जमा आती है बनातुन। तो हादिही की जमा क्या आएगी? हाउलाई। हादिही की जमा क्या आएगी? हादिही की जमा क्या आएगी? हाउलाई, हाउलाई, है ना। अच्छा, तो कहेंगे कि हाउलाई बनातुन। अब ये देखिएगा, तो हादिही की जमा आ रही है हाउलाई, ये याद रखना है सिर्फ आपको। हादिही की जमा क्या आ रही है? हादिही की जमा क्या आ रही है? हाउलाई। अच्छा, अब ये देखिएगा, हादिही बिन तालिबतुन, हादिही हादिही तालिबतुन। आदिल थोड़ा सा उधर चले जाइएगा। हादिही तालिबतुन, हादिही हादिही तालिबतुन, हादिही तालिबतुन। अच्छा, तालिबतुन की जमा आ रही है तालिबातुन। तालिबतुन की जमा क्या आ रही है? तालिबतुन की जमा क्या आ रही है? तालिबातुन। तो अगर कहना होगा कि ये सब स्टूडेंट्स है फीमेल, तो हम क्या कहेंगे? ये सब स्टूडेंट्स है तो हम क्या कहेंगे जी? यहाँ पर क्या हाउलाई जी, हम बस हाउलाई लगा देंगे बस। ये सब, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत की तरफ, एक मोहन्नस की तरफ, एक फीमेल की तरफ इशारा करना हो तो हादी ही कहते हैं हम, है ना। और लेकिन बहुत सारी औरतों की तरफ, या बहुत सारे अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कि मोहन्नस हो लेकिन जमा की शक्ल में हो, ऐसे अल्फाज जो कि मोहन्नस हो लेकिन जमा की शक्ल में हो, तो वहां पर हाउलाई कहेंगे। वहां पर क्या कहेंगे हम? हाउलाई। जैसे कि हम मेल के लिए या मुदक्कर के लिए कह रहे थे हाउलाई, तो औरतों के लिए भी, फीमेल के लिए भी हम हाउलाई कहते हैं। तो हाउलाई तालिबातुन, हाउलाई तालिबातुन। अच्छा, हादिही मुदर्रिसतुन, ये एक टीचर है, हादिही मुदर्रिसतुन। अब पढ़िएगा आगे, जमा बनाइएगा आप लोग, इसको पढ़िए, हादिही मुदर्रिसतुन की जमा बनाइएगा। यहाँ पर लफ्ज लगाइए, क्या लगाएंगे आप? वही लगाएंगे हाउलाई। तो कहिएगा, जैसे टीचर है, हाउलाई मुदर्रिसातुन जी,
हाउलाई मुदर्रिसातुन, हाउलाई मुदर्रिसातुन, ये जो है ना ये पढ़िए और इसकी जमा बोलिए, ये क्या है? हाज़िही तबीबतुन, तबीबतुन, जी, हादिही तबीबतुन, ये एक डॉक्टर है। लेकिन बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स हों तो उनको क्या कहेंगे हम? फिर यहाँ पर क्या लफ्ज हादिही के बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे हम? हाउलाई तबीबातुन, जी। ये हमें हमें जो है ना ये असल जमा के अल्फाज याद रखना है। अब हमें अगर आपसे जो है ना इसको अगर छुपा दिया जाए, अगर इन अल्फाज को अगर हम छुपा दे तो आपको जमा याद होनी चाहिए कि तालिबतुन की जमा तालिबातुन, बिंतुन की जमा बनातुन, मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसातुन, तबीबतुन की जमा तबीबातुन और मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन। यानी मोन्नस की जमा बनाना बहुत आसान है, अलिफ और ता ऐड कर देंगे तो मोन्नस बन जाते हैं बहुत सारे अल्फाज, है कि नहीं? मोन्नस की जमा बनाने का तरीका बहुत आसान है कि उसके आखिर में अलिफ और ता ऐड कर देंगे। जैसे कि ये मुस्लिमतुन है, ये क्या है? ये मुस्लिमतुन है, तो मुस्लिमतुन के आखिर में अलिफ और नून ऐड, अलिफ और ता ऐड कर देंगे, ये ते गिराकर, है ना? मीम के बाद जो है ना अलिफ, ये जो ना वाहिद मोन्नस वाला जो ता है इसको गिराकर मीम के आखिर में अलिफ और ता ऐड कर देंगे, और तो हम पढ़ेंगे मुस्लिमातुन, तो जमा बन गई है आतुन, आतुन, है ना? या आतिन। अच्छा, हादिही ज़ौजतुन, हादिही ज़ौजतुन, ये एक वाइफ है या बीवी है, तो हादिही ज़ौजतुन की शक्ल क्या बनेगी जमा की? बताइएगा। ज़ौजातुन, ज़ौजातुन, हाउलाई ज़ौजातुन, क्या पढ़ेंगे हम इसको? हाँ, यहाँ पर लिखिए हाउलाई ज़ौजातुन। ज़ौजातुन। आप लोग अपने पेंसिल से जो है ना अपनी बुक में या नोटबुक में जहाँ पर भी अपने बुक में लिख लिया करिए इसको यहाँ पर पेंसिल से, हाउलाई ज़ौजातुन, हाउलाई ज़ौजातुन, अल्फाज जमा के याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। हादिही उख्तुन, हादिही उख्तुन, ये एक बहन है, ये एक बहन है, लेकिन ये सब बहनें हैं तो क्या कहेंगे हम? हाउलाई अख्वातुन, अखवातुन, हम कहेंगे हाउलाई अखवातुन, ये सब बहनें हैं, ये सब बहनें। तो हमें जो है ना जितने, अच्छा, हादिही फतातुन, ये एक नौजवान लड़की है। फतातुन का मतलब यंग गर्ल, यंग गर्ल, नौजवान लड़की, उसको कहते हैं फतातुन। तो हम हादिही फतातुन की जमा क्या बनाएंगे यहाँ पर? हाउलाई फतयातुन, हाउलाई फतयातुन, वेरी गुड। और जदीदतुन, हादिही जदीदतुन, जदीदुन और जदीदतुन दोनों की जमा जोदुदुन आती है, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। हमने मुदक्कर के अंदर भी यही पढ़ा हुआ है, जोदुदुन। जदीदुन की जमा जोदुदुन पढ़ी है, और जदीदतुन की भी जमा जोदुदुन। इसका मतलब जदीदुन और जदीदतुन, मुदक्कर और मुअन्नस, दोनों की जमा जोदुदुन आती है, दोनों की जमा सेम आती है, जोदुदुन आती है। तो हादिही जदीदतुन, ये नई है, और हाउलाई जोदुदुन, हाउलाई जोदुदुन, ठीक है ना? अच्छा, तो मैं एक मर्तबा जो है ना, मैं एक मर्तबा जो है ना उसको छुपाता हूँ और मैं आपसे जमा पूछता हूँ। सारे साथी जो है ना मुझे बताए, तालिबतुन की जमा कहिएगा मुझे, तालिबतुन की जमा कहिएगा तालिबातुन, जी। तालिबातुन, तालिबातुन, तालिबातुन। मुदर्रिसतुन की जमा बताइएगा। मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसातुन। तबीबतुन की जमा क्या कहेंगे हम? तबीबातुन, तबीबातुन, अलिफ और ता ऐड कर रहे हैं हम, बस जमा बन जा रही है हमारी मुअन्नस के अंदर, देखिएगा। अच्छा, मुस्लिमतुन की जमा क्या कहेंगे हम? मुस्लिमातुन, हाँ, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। आखिर में जो ता है मुअन्नस वाली उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको गिरा देंगे और अलिफ और ता ऐड कर देंगे, बन जाएगी जमा। हाँ, ज़ौजतुन की जमा क्या बनाएंगे हम? ज़ौजतुन की जमा क्या बनाएंगे हम? अज़वाजतुन, नहीं, ज़ौजातुन, क्या बनाएंगे हम? ज़ौजातुन, जी, शुरू में अगर गलती भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप जो आता है जहन में वो बोला करें, और गलती से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कभी भी सीखना नहीं आएगा, और हम जितनी गलती करेंगे उतना ज्यादा हमें सीखना होता है, सीखने को मिलता है असल में, है ना? ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, असल में ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है लर्निंग के अंदर, चाहे अरबिक लैंग्वेज की लर्निंग हो या इंग्लिश की लर्निंग हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने मैंने जो है ना बकसरत जो है ना मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस की हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की अरबिक लैंग्वेज की और इंग्लिश की भी। तो मुझे पता है जो है ना शुरू में गलतियां होती, कोई मसला नहीं है, आप जो है ना जो जहन में आता बोला करें। तो ज़ौजतुन की जमा है कि ज़ौजातुन, ज़ौजातुन, ज़ौजातुन। अच्छा, उख्तुन की जमा क्या कहेंगे हम? बताइएगा, चलिए। अख़वातुन, हाँ, ऐसा याद रखिएगा, है ना? अखवातुन। उख्तुन की जमा क्या आएगी? अखवातुन, अखवातुन।
اور फतातुन की जमा क्या कहेंगे हम? फतातुन की जमा क्या कहेंगे हम जी? फतायातुन। फतायातुन। अदनान भाई जो भी हैंड रेज कर रहा है उसको भी एक्टिवेट कर दे, उसको भी अनम्यूट कर दे, तो उनसे भी बात हो पाएगी इंशाल्लाह हमारी। अच्छा हाँ, अच्छा जदीदतुन की जमा क्या कहेंगे? अच्छा फतातुन की जमा फतायातुन, फतातुन की जमा फतायातुन, ठीक है ना। और जदीदतुन की जमा क्या कहेंगे हम? जदीदतुन जुदुदुन। वेरी गुड, माशाल्लाह, जुदुदुन जी। ऐसे अल्फाज को याद रखना है हमें। अल्फाज जितने ज्यादा हमारे पास अल्फाज होंगे इंशाल्लाह हमारा जो है ना मामला बहुत आसान होगा। आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। ये देखिएगा, अच्छा ये और है कि कबीरतुन, कबीरतुन की जमा किबारुन आती, याद रखिएगा। हादिही कबीरतुन तो हम कहेंगे हाउलाई किबारुन। और मर्दों के अंदर भी जो है ना किबारुन पढ़ा है हमने, इसका मतलब जो है ना कबीरुन और कबीरतुन दोनों की जमा किबारुन, मर्द और औरत दोनों के लिए किबारुन जमा की शक्ल में। और सगीरतुन की जमा भी सिगारुन, जैसे कि हमने सगीरुन मर्द के लिए पढ़ा था, हमने मुदक्कर के लिए पढ़ा था सगीरुन, और उसकी जमा हमने पढ़ी थी सिगारुन, तो फीमेल यानी सगीरतुन की जमा भी सिगारुन। और तवीलुन और तवीलतुन दोनों की जमा आती है तिबालुन, तो मेल के अंदर या मुदक्कर के अंदर भी हमने तिबालुन, तो किबारुन और सिगारुन और तिबालुन ये तीनों जमा हमने जो है ना मुदक्कर में भी पढ़ी थी, है ना। तो ये देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 2 है कि इकरा वक्तुब। तो चलिएगा आप लोग पढ़िएगा और समझाइएगा मुझे, आप ही लोग मुझे समझाइए। चलिए जो पढ़ सकता है पढ़े, कोई मसला नहीं है। सिस्टर की तरफ से या भाइयों की तरफ से कोई अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, थोड़ा थोड़ा पढ़े। हर जी पढ़े कोई हाउलाई इखवती व जी। हाउलाई अखवाती। हाँ मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? मतलब भी बताइएगा जी। ये सब मेरी बहनें हैं और नहीं, ये पहले वाला जो इखवती है इसका मतलब होगा भाई। ये जो पहले भाई, वाला सॉरी। जी 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 अखुन, जी कोई जी। मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। गलती करने से डरना नहीं है, कभी भी ये ध्यान में नहीं रखना है कि जो है हम गलती करेंगे तो हमारे ग्रुप में बहुत सारी जो है ना सिस्टर्स हैं तो वो क्या कहेंगी, या कोई भाई है ब्रदर है तो वो जी ये ना सर। सोचे कि भी मैं गलती करूंगा तो हमारे दूसरे सारे जो है ना ये समझे कि भाई हम सब सीखने के लिए बैठे हैं। हो सकता है किसी से गलती हो रही तो ये नहीं करना है हमें, है ना। कोई कोई मसला नहीं है गलती का, कोई मसला नहीं है गलती का, बिल्कुल बेफिक्री के साथ बोलिए आप, गलती भी हो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो अखुन की जमा इखवतुन, अखुन की जमा इखवतुन, इखवतुन अखुन की जमा इखवतुन। इखवतुन। शुरू में याद नहीं रहता है। जब हम कोई लैंग्वेज शुरू में सीखते हैं ना, एनी लैंग्वेज, चाहे अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, बड़ा मुश्किल होता है सीखना। आप तो आप लोगों की प्रोग्रेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नई जुबान है ये, है ना। कोई हमारी मादरी जुबान तो नहीं है, आप लोगों ने माशाल्लाह जीरो से शुरू किया है इसको, और काफी दूर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी चीजें। तो हमें ये नहीं समझना है कि भाई हमने क्या नहीं सीखा, ये सोचे कि हमने बहुत कुछ सीखा है ना। अच्छा हाउलाए इखवती, ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरे जी, कौन है? भाई हैं। भाई है। वहा और उलाई अखवाती, अब ये ये बहनें सब हैं, मेरी बहनें हैं जी। ये मेरे बहनें अखवाती बहनें हैं ये। तो इखवतुन और अखवातुन, है ना, याद रखिएगा। जब अगर कंफ्यूजन हो, जब दो लफ्जों में कंफ्यूजन हो तो उनमें से एक अच्छी तरह याद कर ले, उनमें से याद, ये आसानी से याद हो जाएगा। अखवात का मतलब बहनें, अखवात का मतलब बहनें, तो इसका मतलब इखवतुन का मतलब भाई, इखवतुन का मतलब भाई, और अखवातुन का मतलब बहनें। अच्छा दूसरी लाइन पढ़िएगा, मन हाउलाइल फतियातु। ये फतायातु, सब वेरी गुड। मन जी, ये हाउलाइल सब फतायातु, क्या मतलब है इसका? ये सब नौजवान लड़कियां कौन है? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मन हाउलाइल फतायातु, ये सब नौजवान लड़कियां कौन है? तो आगे पढ़िएगा, हाउलाई बनातुल मुदर्रिसतु। मुदर्रिसती, क्या पढ़ेंगे हम जी, इसको? ये मुदर्रिसती, सब क्यों? हाँ याद रखिएगा, ये सब इसको याद जी रखिएगा सारे साथी और सारी सिस्टर्स, के जब हम मुदाफ और मुदाफिल है जो है ना हम कहते हैं इसको, इस स्ट्रक्चर को काके की, वो जुमले अरबी के जिसके अंदर जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं काके की, तो मुदाफ, और जैसे कि भी टीचर की बेटियां, टीचर जी की बेटियां, तो जिन जुमलों के अंदर उर्दू में काके की या हमारा हमारे हमारी या मेरा मेरे मेरी ऐसा कहते हैं हम, तो वो जुमले जो है ना मुदाफ और मुदाफ लेके होते हैं। और उसके अंदर जो है ना ये देखिएगा बनात जो लफ्ज है ये मुदाफ कहेंगे हम इसको, बनात जो लफ्ज है इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम मुदाफ इसको? मुदाफ, मुदाफ। जी मुदाफ कहेंगे, है ना। छोटा सा रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं ग्रामर के रूल से, तो ज्यादा ग्रामर के रूल नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो बनातुल मुदर्रिसती, क्या पढ़ेंगे हम इसको? हाउलाई ये सब बनातुल मुदर्रिसती, क्या पढ़ेंगे हम इसको? हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती।
जी। तो अब ये याद रखिएगा कि ये जो है ना बनातुन जो लफ्ज पढ़ रहे हैं हम, बनात, ये इसको कहते हैं मुदाफ, है ना, इसको क्या कहते हैं, मुदाफ। और ये मुदाफ के बाद ये दूसरा लफ्ज आ रहा है, इसको कहते हैं मुदाफ इलैह। क्या कहते हैं हम इसको? अलमुदर्रिस मुदाफ इलैह। अब ये जी, और ये छोटा सा रूल याद रखिएगा कि ये जो मुदाफ इलैह आता है वो हमेशा जेर पड़ा जाता है उसके नीचे। मुदाफ इलैह के नीचे हमेशा जेर पड़ा जाता है, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये रूल जो है ना याद रखिएगा छोटा सा, कि मुदाफ इलैह, क्या कहा मैंने, रिपीट कीजिएगा, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। रिपीट कीजिएगा, मैंने क्या कहा? मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। अच्छा, मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो आखिर में लफ्ज होता है जैसे मुदर्रिसती, या जी, तो देर पढ़ा जाएगा उसके देर पढ़ा जाएगा। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये याद रखिएगा सारी सिस्टर्स, सारे भाई, कि जब हम कहते हैं कि मुदाफ इलैह हमेशा, दोबारा सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, अपने ध्यान में रखिएगा, जब हम ये कहते हैं कि मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये रूल है अरबी का। लिख लीजिएगा रेड पेन से अपने नोटबुक में, डायरी में, किताब में, अगर पेंसिल से लिखना हो तो लिख ले, नोटबुक में लिख ले। रेड पेन से लिखेगा नोटबुक में कि मुदाफ इलैह, हमने एक रूल पढ़ा है कि मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। ये मोटा सा रूल अपने जो है ना मोटा मोटा लिखिएगा, रूल आपके फौरन स्ट्राइक होना चाहिए नोटबुक में। ये जो है ना रेड पेन से जो लिखा है, ये रूल है, ये हमारा अरबी का, ग्रामर का। तो मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये रूल है। और इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि मुदाफ इलैह मजरूर होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुदाफ इलैह, जो लफ्ज मुदाफ इलैह बनकर आता है उसके नीचे जो है ना, उसके नीचे आखिर में जो है ना कसरा होता है, उसके नीचे जेर पड़ा जाता है। तो मजरूर होने का मतलब क्या होता है? उसके नीचे जेर पाई जाती है, जेर पड़ा जाता है। ये बस ये याद रखिएगा। कोई भी लफ्ज अगर कहेंगे कि ये मजरूर है, याद रखिएगा, जब हम किसी लफ्ज को कहेंगे कि ये मजरूर है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके नीचे जेर पड़ा जाएगा। किसी भी लफ्ज के बारे में अगर हम ये कहेंगे कि ये लफ्ज मरफू है, तो ये समझे कि उसके आखिर में पेश पड़ा जाएगा। जब भी हम कहेंगे कि ये लफ्ज मंसूब है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस लफ्ज के आखिर में जबर पड़ा जाएगा। मैंने क्या कहा? कोई रिपीट कर सकता है जो मैंने कहा, या मैं दोबारा रिपीट करूं? जो मुजाफ इलैह होता है उसके नीचे जेर पढ़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और मारूफ अच्छा, होता है उसको, जो मारूफ होता है मरफू होता है। जो अगर हम कहेंगे कि कोई लफ्ज मरफू है, तो मरफू का मतलब क्या हो रहा है? मरफू का मतलब क्या हो रहा है? जिसके ऊपर जबर लगा होता है, और पेश होगा, पेश होगा। हाँ, पेश होगा। तो इसको भी रेड पेन से लिख लीजिएगा। नंबर 1 लिखिएगा कि मरफू का मतलब, जब हम कहते हैं कि ये लफ्ज मरफू है, तो मरफू का मतलब होता है आखिर में पेश। ऐसे लिखिएगा, नंबर 1 ऐसे लिखिएगा नोटबुक में रेड पेन से, कि मरफू का मतलब होता है लफ्ज के आखिर में पेश होना, ऐसा लिखिएगा। फिर नीचे लिखिएगा नंबर 2 कि मंसूब, जब हम कहते हैं मंसूब, किसी लफ्ज को हम कहते हैं कि यह लफ्ज मंसूब है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आखिर में जबर है। और जब हम किसी लफ्ज के बारे में ये कहते हैं कि ये लफ्ज मजरूर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आखिर में जेर है। तो ये जो है ना मरफू, मंसूब और मजरूर, 1 2 3 ऐसा नंबर डाल लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सारा क्लियर है जो बात मैंने कही? आगे बढ़े हम सर। जी सर, एक मिनट। मरफू का मतलब पेश, जी, आखिर में पेश, आखिर में पेश। मंसूब का मतलब आखिर में जबर, जी, मंसूब का मतलब आखिर में जबर, जी। और वो मजरूर का मतलब आखिर में जेर। तो जब हम कह रहे कि, तो ये याद रखिएगा, जब हम बार बार बोलते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। याद कराने के लिए हम बार बार बोलते रहते हैं आप लोग बेसिकली। तो जब आप मुदर्रिसती, जो मुदाफ इलैह, ये मजरूर है, मुदाफ इलैह। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आखिर में कसरा पढ़िए, मैं ये कहूंगा कि इसको मजरूर पढ़िए। तो अगर मैं कहूँ, या कोई भी कहता है, अगर अरबी पढ़ाने वाला, कोई भी अरबिक टीचर ये कहता है कि लफ्ज मजरूर है, तो आपको क्या समझना चाहिए उससे? लफ्ज मजरूर, अगर कोई ग्रामर का टीचर, कोई भी अरबी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई भी पढ़ा रहा है ना, तो अगर ये कहता है कि ये लफ्ज मजरूर है, तो मजरूर का मतलब होता है उस लफ्ज के आखिर में जेर होता है। मजरूर का मतलब होता है उस लफ्ज के आखिर में जेर है। अच्छा, चलिए, किसी की तरफ शोर आ रहा तो उसको दोनों म्यूट कर दे। अच्छा, नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िए। नंबर 3 का जुमला पढ़िएगा, कोई भी पढ़ सकता है। हाउलाइल फतायातु जमीलाती। वेरी गुड। हाउलाइल फतायातु जमीलाती, ऐसा जुबान से पढ़ना जरूरी है। और
सारे साथी और सारी सिस्टर जो है ना, जब कोई पढ़े तो सारे अपनी जुबान से भी पढ़ा करें आप लोग, यानी जो लोग साइलेंट सुन रहे हैं तो सुनते सुनते अपनी जुबान से भी आप लोग पढ़ा करें। जुबान का बड़ा दखल होता है, जुबान हमारी जो टंग है, हमारी जो जुबान है, इसका बड़ा दखल होता है सीखने में, लर्निंग में, है ना। आपको आपको हम सब ये बात जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो लुकमे के अंदर बाल आता है तो हमारी जुबान जो है ना वो बाल को पकड़ लेती है, यही बात है कि नहीं। खाने के अंदर अगर बाल आता है तो हमारी जुबान पकड़ती कि नहीं, उसको पकड़ लेती है जी। तो क्यों जुबान में एक हिस्स रखी है कि वो जो है ना, अगर जुबान हमारे लुकमे में अगर खाने में बाल वगैरह आ जाता है तो जुबान पकड़ लेती है, या कोई कचरा आ जाए या कोई कांटा आ जाए तो जुबान जो है ना पकड़ लेती है उसको। इसी तरह जो है ना लैंग्वेज के मामले में जुबान जो है ना पकड़ती है ना। तो जुबान ये कैच करती है कि आप जो है ना, जब आप उसको ट्रेन करना पड़ता है, हमें अपनी जुबान को ट्रेन करना पड़ता है हमें, अपनी टंग को, कि जो है ना वो गलत जुमले और सही जुमले को पकड़े। यानी बाल को पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता, वो अल्लाह ने रख दी हमें हमारी जुबान में। लेकिन लैंग्वेज के अंदर हमें जो है ना, अगर आपके सामने दो सेंटेंस रख दिए जाए कि ये सेंटेंस जो है ना, दो सेंटेंस के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये सेंटेंस गलत सही है कि ये दूसरा नंबर सेंटेंस सही है, तो आपकी जुबान ने उसको पकड़ लेना चाहिए। हमारी जुबान जैसे पकड़ लेती है बाल को, तो उसी तरह हमारी जुबान ने इतना ट्रेन हो जाना चाहिए कि वो जुमले को भी पकड़ ले कि ये जुमला सही है और ये जुमला गलत है ना। तो जो है ना, इसीलिए इसका दखल होता है, इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो सारे साथी जो है ना इसको पढ़ा करें, जुबान से पढ़ा करें, है ना। क्लास के अलावा भी पढ़ा करें किताब को जोर जोर से अपनी जुबान से। चलिएगा, हाउलाइल फतयातु जमीलाती, ये क्या मतलब होगा इस जुमले का। नौजवान लड़कियां मेरी क्लासमेट हैं। जी, ये सब लड़कियां जो है मेरी क्लासमेट है। अच्छा, इसको पढ़िएगा, आगे के जुमले को पढ़िएगा। अबू हुन्ना जी, हाँ जी, के इन सब के वालिद डॉक्टर हैं। वेरी गुड। उम्मुहुन्ना जी, मुदर्रिसा, मुदर्रिसतुन, वो मुदर्रिस और उनकी वालिदा टीचर जी हैं। टीचर है, वेरी गुड। और आगे का पढ़े या कोई और पढ़े, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़े। नंबर 4 जुदुदुन, क्या पढ़ेंगे हम इसको, अल जुदुदु, क्या पढ़ेंगे हम इसको। हाँ, सारे 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 साथी याद रखे, सारी सिस्टर याद रखे, इस लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा। इस लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन एक मरतबा कीजिएगा, आप प्रोनाउंस कीजिए इस लफ्ज को एक मरतबा, अलजुदुदु, अलजुदुदु, वेरी गुड। जब हम अपनी जुबान से बोलेंगे तभी आएगा, अगर मैं कहूंगा तो मुझे ही आएगा, सिर्फ आपको तो नहीं आएगा ना। और मुझे तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको भी याद करना है उसको ना, तो आपको अपनी जुबान से अदा करना होगा याद करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे आइना तालिबातुल जुदुदु, देखो देखें आप, देखिएगा इस पर कोई जबर जेर नहीं लगा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको। तो इसका मतलब हमारी जुबान जो है ना मानूस हो रही है, हमारी जुबान फैमिलियर हो रही है जुमलों से, सेंटेंसेस से, है ना। तो आइना तालिबातुल जुदुदु, तो तर्जुमा कैसे करेंगे हम इसका। नई तालिबात कहाँ हैं, नई तालिबात कहाँ हैं, तो इसको पढ़िएगा, ज़हबना इलल मक्तबी, इलल मक्तबती, ज़हबना इलल मक्तबती, क्या वो हो सब लाइब्रेरी लाइब्रेरी की तरफ गई हैं। वेरी गुड, वो सब लाइब्रेरी की तरफ गई हैं या वो लाइब्रेरी गई हैं, दोनों तर्जुमे सही है। तो ज़हाबना जो है ना, जब हम बहुत सारी औरतों के बारे में बात करते हैं कि गई हैं, उन्होंने बहुत सारी औरतों ने पढ़ा है, बहुत सारी औरतें गई हैं, तो ना लगाते हैं हम, ज़हबना, क्या कहते हैं हम, ज़हबना, ज़हबना, है ना, ज़हबना। और एक औरत गई, या अगर फातिमा गई तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम, ज़हबते, नहीं, ज़हबत। अगर ज़हबत, एक जी याद रखिएगा अच्छी तरह, सारी सिस्टर, सारे जो है ना साथी याद रखिएगा। एक औरत गई, फातिमा गई, आयशा गई, तो कहेंगे आयशा या फातिमा लाइब्रेरी गई, तो क्या कहेंगे हम, ज़हबता आयशा इलल मक्तबी, ज़हबत, क्या कहेंगे हम इसको, ज़हबत, क्या कहेंगे हम इसको, ज़हबत, ज़हबत, जी याद रखिए, ज़हबत आयशा इलल मक्तबती, इलल मक्तबती, तो हम कहेंगे ज़हबत आयशतु इलल मक्तबती, क्या कहेंगे हम, ज़हबत आयशतु। हाँ, रिपीट कीजिएगा इस जुमले को, कोई और सिस्टर, कोई और भाई जो है ना इसको रिपीट कर सकता है कि आयशा लाइब्रेरी गई, तो कैसे कहेंगे हम, ज़हबत आयशतु इलल मक्तबती। जी, ज़हबत आयशतु इलल मक्तबती, ज़हबत आयशतु इलल मक्तबती। अच्छा बताइएगा मुझे, टीचर लाइब्रेरी गया तो कैसे कहेंगे, कोई भी बताए, सिस्टर बताए, भाई कोई भी भाई बता सकता है हमारा, या कोई बहन बता सकती है कि टीचर जो है ना लाइब्रेरी गया तो कैसे कहेंगे, टीचर लाइब्रेरी गया है,
ذهب مدرس إلى المكتبة. المدرس جی ذهب مدرس إلى المكتب إلى مکتبت المكتبة. ذهب المدرس الى المکتبت کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ذهب المدرس إلى المكتبة. جی ایسا کہیں گے تو ہمیں بولنا ضروری ہے اپنی زبان سے بولنا ضروری ہے اچھا حامد اگر لائبریری گیا ہے تو کیسے کہیں گے اچھا یہ بتائیے گا حامد مسجد گیا تو کیسے کہیں گے آپ بتائیے گا ذهب حامد إلى المسجد. ذهب حامد الى المسجد ذهب حامد الى المسجد جی تو مرد گیا تو ذهب کیا کہا میں نے مرد گیا تو ذهب اور عورت گئی تو ذهبت ذهبت ٹھیک ہے نا تو جو ہے نا الحمدللہ یہ جو ہے نا ذہن میں رکھنا ضروری ہے نا اچھا میرے ابو اور میرے امی کو کیا کہیں گے بتائیے گا چلیے أبوي ابوئی نہیں ابھی أبي ابوئی نہیں کہیں گے بلکہ ابن کا مطلب جی ابن کا مطلب أبي وأمي. ہاں جی ابن کا مطلب باپ اور میرا باپ یا میرے ابو ابن کے مطلب والد صاحب ابن کا مطلب والد ہے نا اور میرے والد صاحب تو کہیں گے ابھی کیا کہیں گے ہم ابھی ہاں ابھی ابوئی نہیں ہے نا واو نہیں پڑھیے گا اس میں ابھی اور میرے امی تو کیا کہیں گے امی امی تو کیا کہیں گے ہم امی چلیے اب یہ بتائیے مجھے کہ میرے ابو مارکیٹ گئے تو کیسے کہیں گے ذهب أبي إلى السوق. ذهب ابھی الى السوق ویری گڈ کیا کہیں گے ہم ذهب أبي إلى السوق. ہاں ابھی ذہابہ کیوں کہہ رہے ہیں لفظ ابن جو ہے نا مذکر ہے ذہابہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم چونکہ ہم مذکر کے لیے مرد کے لیے استعمال کر رہے ہیں لفظ نا ذہابہ کو استعمال کر رہے ہیں مرد کے لیے تو ہم ابو کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ذہابہ ابھی الی السوق اگر کہیے گا کہ میری امی ہاسپٹل گئی ہیں تو کیسے کہیں گے چلیے میری امی ہاسپٹل ذهبت أمي إلى المستشفى. ویری گڈ تو ذہبت امی الی المستشفى دیکھیے گا جب ہم جو ہے نا چیزوں کو استعمال رول پڑھ لینا الگ چیز ہے گرامر کے رول پڑھ لینا الگ چیز ہے لیکن اس کو استعمال کرنا اس کو اپلائی کرنا اہم ہے بہت ضروری ہے اس کو تو ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا بس کتابیں جو ہے نا درس ختم کرتے رہے لیسن ختم کرتے رہے اور اس کو استعمال نہ کریں تو ان کے جملے بنانا بہت ضروری ہے اس کے لیے ہے نا اچھا تو ذهب ابی الی السوق وذهبت امی الی المستشفى ہے نا پورا لمبا جملہ ریپیٹ کر کے بتائیے گا زبان سے ادا ہوتا ہے کیا میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں سارے ساتھی غور سے سنیے گا میں ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں سارے ساتھی غور سے سنیے اور پورا جملہ ریپیٹ کر کے بتائیے گا سنیے گا اس کو ایک مرتبہ سنیے گا اس کو ذهب ابی الی السوق وذهبت امی الی المستشفى ریپیٹ کر کے بتائیے گا جملہ ذهب أبي إلى المستشفى وذهبت أمي إلى المستشفى. جی ذهب ابی الی السوق وذهبت امی الی المستشفى ویری گڈ ہے نا چلیے آگے بڑھتے ہیں اچھا نمبر 5 کا جملہ پڑھیے گا أين بناتك يا عمتي. ویری گڈ امتن کا مطلب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم کر دیں گے پھوپھی جان جی ویری گڈ امتن کا مطلب پھوپھی اور چچا کو کیا کہتے ہیں عربک میں امن ویری گڈ ماشاءاللہ امن اور امن کا مطلب چچا اور امتن کا مطلب پھوپھی ہے نا پھوپھی امتن کا مطلب پھوپھی چچی نہیں ہے نا اچھا اینا بناتک یا اچھا اینا بناتک نہیں پڑھیں گے یہاں پر کا کے نیچے زیر پڑھیں گے چونکہ وہ امتن سے بات کر رہے ہیں بناتوں کی ٹھیک ہے نا تو امتن سے بات کر رہے ہیں پھوپھی سے بات کر رہے ہیں ہم نا تو ہم کہیں گے اینا بناتو کی کا نہیں کہیں گے بل کا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو مؤنث بن جاتا ہے کتابوں کا کتابوں کی ہے نا تو اینا بناتو کی یا عمتی تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے جملے کا بتائیے گا مجھے اے پھوپھی آپ کے بیٹیاں کہاں ہیں میری پھوپھی آپ کی بیٹیاں کدھر ہیں ویری گڈ اینا بناتو کی یا عمتی اے امی اے میری پھوپھی آپ کی بچیاں کدھر ہیں تو کہا کہ بڑھیے گا آگے پڑھیے جملہ آگے ہن فی المطبخ
हुन्न फिल मतबखी, हुन्न फिल मतबखी, वेरी गुड माशाल्लाह। देखिए अब मतबख के आखिर में कुछ लगा नहीं है, जबर जेर पेश है ना, लेकिन आपने बराबर पढ़ा उसको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि फी और इला और मिन और अला ये जो हर्फ आता है, इनमें से कोई भी हर्फ आएगा लफ्ज के पहले, उस लफ्ज के आखिर में देर पड़ा जाता है, मजरूर बन जाता है वो लफ्ज। तो ये देखिएगा चीजें हमें डॉक्टर साहब ने जानबूझ के जबर देर पेश नहीं लगाया। ये देखिएगा इलल मक्तबती, डॉक्टर साहब ने जो है ना, डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब ने इसके नीचे जानबूझकर जबर देर पेश नहीं लगाया, और इसके नीचे भी जबर देर पेश नहीं लगाया, ताकि आपको समझ में आए कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हमारा, धीरे धीरे डॉक्टर साहब क्या है, शुरू में जबर देर पेश लगाते थे, और जब आगे बढ़ रहे तो जबर देर पेश हटा लिया उन्होंने जानबूझ के, लाठी हटा लेते हैं वो। तो एक टाइम आएगा इंशाल्लाह के पूरी लाइन में, पूरी किताब में, पूरे पेज पर एक जबर एक देर एक पेश ना हो, फिर भी आप पढ़ लेंगे उसको करेक्ट, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। अच्छा, तो हुन्ना फिल मतबखी, हुन्ना फिल मतबखी वो सब किचन में है। अच्छा, नंबर 6 का जुमला पढ़िएगा। मुस्लिमातुन, क्या पढ़ेंगे हम इसको? मुस्लिमातुन। कोई रीजन नहीं है यहाँ जेर पढ़ने का। जब हमें कोई रीजन ना समझ में आए जेर पढ़ने का, तो पेश पढ़िए हमेशा, याद रखिएगा। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? कोई रीजन ना हो तो उसको पेश ही पढ़े, पेश पढ़िएगा। तो रीजन अगर कोई दिख रहा है कि ये रीजन है, जेर पढ़ने का कोई रीजन नहीं है, तो पेश पढ़िएगा, है ना, ये याद रखिएगा। छोटी सी टिप याद है ना, ट्रिक है उसके ध्यान में रखने की। तो अहाउला इल मुमर्रिदातु मुस्लिमातुन, अहाउला इल मुमर्रिदातु मुस्लिमातुन। मुमर्रिदातुन एक लफ्ज पढ़ा था हमने, किस माना में पढ़ा था? मुमर्रिदातुन नर्स के माना में। तो मुमर्रिदातुन की जमा है ये मुमर्रिदातुन, मुमर्रिदातुन की जमा है ये मुमर्रिदातुन। तो जुमले का मतलब बताइएगा मुझे। क्या ये सब नर्सें मुसलमान हैं? जी, क्या ये सब नर्सें मुसलमान हैं? तो कहा कि नाम, जी हाँ। नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा, नंबर 7 का जुमला पढ़िएगा। हाउलाए तबीबातुन, हाउलाए तबीबातुन, जी, हाउलाए तबीबातुन। क्या मतलब होगा इसका? वो सब, ये सब डॉक्टर हैं, ये सब फीमेल डॉक्टर्स हैं। ये सब औरतें कौन है? ये सब फीमेल डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं। जी, अभी इसको पढ़िएगा। अज़वाजुहुन्ना मुदर्रिसून, जी, अज़वाजुहुन्ना मुदर्रिसून। क्या मतलब हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या मतलब इसका? उन सब के खामद टीचर हैं, टीचर है। सबके हस्बैंड जो है ना, ये टीचर है। ये जो लफ्ज अज़वाजुन है, लफ्ज अज़वाजुन है, ये जमा है। ये सब, ये लफ्ज अज़वाजुन क्या है? ये जमा है। तो इसका वाहिद जहन में है क्या आप लोगों की? अज़वाजुन का वाहिद ज़ौजुन, जी, वेरी गुड माशाल्लाह। हस्बैंड को कहते हैं ज़ौजुन, याद रखिएगा अच्छी तरह। हस्बैंड और वाइफ के लिए अरबी का लफ्ज याद रखिएगा, और दोनों की जमा याद रखिएगा, और नोटबुक पे लिख लीजिएगा इसको। तो हस्बैंड को कहेंगे ज़ौजुन, हस्बैंड को क्या कहेंगे? शौहर को क्या कहेंगे? ज़ौजुन, जी। और उसकी जमा क्या कहेंगे? अज़वाजुन। उसकी जमा क्या कहेंगे? अज़वाजुन। और वाइफ को क्या कहेंगे? औरत को, बीवी को क्या कहेंगे? ज़ौजतुन। उसकी जमा क्या कहेंगे हम? ज़ौजातुन। तो देखिए माशाल्लाह 4 लफ्ज आपको फौरन याद हो गए, 4 अल्फाज आपको याद हो गए। तो इसी तरह जो है ना, ठहर कर, रुक कर, सबर के साथ में, पेशेंस के साथ में, लैंग्वेज को जो है ना सबर के साथ पढ़ना पड़ता। लैंग्वेज को भागते हुए नहीं पढ़ना पड़ता है कभी भी, ऐसा भाग कर कोई फायदा नहीं है। चीजों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा चीजें याद होते रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा ज़ौजुन शौहर जमा अज़वाजुन, नीचे लिखिएगा ज़ौजतुन जमा ज़ौजातुन बीवी। तो ये देखिएगा 4 अल्फाज याद हो जाएंगे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मुन और अम्मतुन ऑलरेडी याद हो गया है ना, अम्मुन और अम्मतुन ऑलरेडी आपको याद है। मामू को क्या कहते हैं हम? मामू जान को खालुन। मामू जान को क्या कहेंगे? खालुन या अलखालुन, है ना, ठीक है ना। हाँ, चलिएगा नंबर 8 का जुमला पढ़िएगा। कर देते हैं जी। मन हाज़िहिल मरअतु, मरअतुन का मतलब याद है किसी को? पता है? औरत, वेरी गुड, औरत, मरअतुन। और मर्द के लिए क्या लफ्ज है? रजुलुन, वेरी गुड।
मन हादिहिल मरअतु का मतलब क्या, देखिएगा ये दो लफ्ज भी जो है ना अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। रजुलुन का मतलब मर्द और इमराअतुन का मतलब होता है, या मरअतुन का मतलब होता है औरत। तो मर्द और मैन एंड वुमन दोनों के लिए लफ्ज लिखिएगा, मर्द औरत रजुलुन इमराअतुन दोनों लफ्ज याद रखिएगा। तो मन हादिहिल मरअतु का मतलब क्या होगा, ये औरत कौन है? ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, वेरी गुड। और ये मर्द कौन है, जी जी, और ये मर्द कौन है तो कैसे पूछेंगे, मन हाज़र रजुलु, रजुलु। तो हमें जो है ना ठहर कर जब हम जो है ना पेशेंस के साथ में अगर हम सीखते हैं तो चीजें समझ में आती है। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही है ना? अगर मैं दौड़ता रहूं और आप भी मेरे साथ दौड़ते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊंगा, है ना? तो ठहर के पढ़िएगा इसको। तो मन हादर रजुलो, ये मर्द कौन है, मन हादिहिल मरअतु, ये औरत कौन है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये जुमला पढ़िएगा इसको, आगे का जुमला। ज़ौजतु तबीबिल जदीदी, क्या पढ़ेंगे हम इसको, तबीबिल जदीद। ये मुदाफिल है, ये मुदाफिल है और मुदाफिल मजरूर पढ़ते हैं हमेशा। ज़ौजतुन मुदाफ, देखिए काके की आता है ना, डॉक्टर की बीबी, याद रखिएगा। मुदाफ और मुदाफिले को कैसे पहचानेंगे हम, मुदाफ और मुदाफिले को पहचानने का तरीका हमने एक वीडियो भी डाला है ऑलरेडी मुदाफ और मुदाफिले के बारे में। तो मुदाफ और मुदाफिले को पहचानने का तरीका क्या है, उर्दू वाले जुमले में जो है ना का, के, की, या मेरा, मेरे, मेरी, तेरा, तेरे, तेरी, हमारा, हमारे, हमारी, इस टाइप का जो है ना उर्दू होता है, उर्दू होती है उसकी। तो देखिएगा टीचर की बीबी, की आ गया ना, का, के, की, उर्दू जो कहेंगे का, के, की, तो मुदाफ और मुदाफिले जुमला बनता है उसका, है ना? तो ज़ौजतुन मुदाफ और अत्तबीब मुदाफिले है। और जब लफ्ज मुदाफिले बनता है तो मजरूर हो जाता है, वो मजरूर हो जाता है का मतलब आखिर में देर पड़ी जाती है, ये मतलब। तो ही हम क्या पढ़ेंगे इसको, ज़ौजतु तबीबिल जदीद, पढ़ के बताइएगा दोबारा एक मरतबा। वेरी गुड। जब हम पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगी इंशाल्लाह, है ना? जब इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि पढ़े, आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, कभी गलती नहीं होगी आपकी। मुझसे भी गलतियां होती थी जब मैं शुरू में अरबी पढ़ता था, तो मैं भी आप लोग जैसे गलती करते हैं ना, वहाँ देर और जहाँ देर पढ़ना चाहिए वहाँ पेश पढ़ते हैं ना, तो हमने भी वैसे किया हुआ है। आप लोग जैसे करते हैं मैं भी वैसे करता था, और हर स्टूडेंट ऐसे ही करता है शुरू में। ऐसा जो भी अरबिक पढ़ता है तो वो जो है ना ऐसा ही पढ़ता है, जेर को जबर और जबर को जेर और पेश को, यानी जहाँ जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता। लेकिन बाद में जो है ना वो उसको समझ आने लगती है उसको कि नहीं 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 ये तो गलत हो रहा है, ये तो मुदाफिल है और मुदाफिल मजरूर होता है। तो रूल जो है ना बाद में बार बार याद दिलाते रहते हैं और वो याद हो जाता है रूल। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ना, बिग डील नहीं है ये। तो ही ज़ौजतु तबीबिल जदीद का मतलब क्या होना चाहिए, मतलब बताइएगा। वो नए डॉक्टर की बीवी है। हाँ, ये जो है ना नए, क्या कहा आपने, ही ज़ौजतु तबीबिल जदीद, ये नए डॉक्टर की बीवी है, ये नए डॉक्टर की बीवी है जी। पूछा कि ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, सवाल में क्या है, ये औरत कौन है, तो हम जवाब में कहेंगे कि ये जो है ना नए डॉक्टर की बीवी है, ये नए डॉक्टर की बीवी है। देखिएगा तबीबुल जदीद नया डॉक्टर, ये मौसूफ सिफत है ये। अच्छा, अभी ग्रामर के चक्कर में नहीं जाते, नंबर 9 का जुमला पढ़िएगा। 10 ले लेंगे और खत्म हो जाएगी हमारी कहानी। अब बनातु का फिल मदरसती सानविया या उसामा, या उसामतु, क्या पढ़ेंगे हम, या उसामतु। ये एक रूल याद रखिएगा और रेड पेन से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि या जो कहते हैं हम, या जब किसी को आवाज देते तो या कहते हैं हम अरबिक में, है ना? किसी को आवाज देते हैं तो हम या कहते हैं, इसको हरफ निदा कहते हैं। आपको पता है क्या कहते हैं इसको, या को क्या कहते हैं, हरफ निदा कहते हैं, हरफ निदा कहते हैं। तो अपने नोटबुक में अपने डायरी में या लिख लीजिएगा रेड पेन से कि या को हरफ निदा कहते हैं, और या के बाद जो लफ्ज आता है उसके ऊपर हमेशा पेश पढ़ा जाता है। क्या कहा मैंने, रिपीट कीजिएगा। हरफ निदा जहाँ पे आता है उसके आखिर पे पेश पढ़ा जाता है। ऐसा लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि या जो है ना, या जो कहते हैं हम उसको अरबी में हरफ निदा कहते हैं, और या के बाद जो लफ्ज आता है उसके ऊपर हमेशा पेश पढ़ा जाता है। तो हम कहेंगे या उसामतु, या खालिदु, या हामिदु, या फातिमतु, या आयशतु। तो या के बाद कोई भी लफ्ज आ रहा है तो उस पर जो है ना पेश पढ़ेंगे हम। चलिए, तो अबनातु का फिल मदरसति सानवियति या उसामतु, तो पढ़िएगा, मतलब बताइएगा मुझे। ए उसामा, क्या आपकी बेटियां मदरसा सानविया में हैं? जी, स्कूल में है। और सानविया का मतलब सेकेंडरी स्कूल,
सानिया का मतलब सेकेंडरी है ना, सानी का मतलब सेकंड ना, सानी का मतलब सेकंड। अच्छा, तो क्या तुम्हारी बेटियां जो है ऐ उसामा, क्या तुम्हारी बेटियां सेकेंडरी स्कूल में? तो उसने जवाब दिया, बता पढ़िएगा जवाब उसका, बाज़ुहुम फिल मदरसति पढ़िएगा। सानवियतु बादुहुन्ना फिल फिल मदरसति सानवियति, सानवियतु बादुहुन्ना फिल मदरसति, फी की वजह से जेर पढ़ेंगे। हाँ वेरी गुड, दोबारा पढ़िएगा। सानवियति बादुहुम हाँ जी, फिल मदरसति सानवियति बादुहुन्ना बाज़ुहुन्ना बादुहुन्ना बादुहुन्ना, चूंकि बनात मुअन्नस है ना, बनात जो मुअन्नस है, तो पढ़ेंगे हम मुअन्नस। तो बादुहुन्ना फिल मदरसति सानवियति व बाज़ुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सति। वेरी गुड, तो मतलब मुतवस्सितती, तो जी वेरी गुड। तो मतलब समझ में आ रहा, तो समझाइएगा मुझे, कोई भी समझा सकता है। कुछ इनमें से सेकेंडरी स्कूल में है और कुछ इनमें मदरसतुल मुतवस्सित मिडिल स्कूल में है, मिडिल स्कूल में है। ये मुतवस्सित का मतलब मिडिल। तो बादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, तो कहा कि भी बादुहुन्ना फिल मदरसति सानिवियत, फी के बाद जो लफ्ज आ जाएगा ना, फी के बाद कोई भी लफ्ज आएगा तो उसके नीचे जेर पड़ेंगे, याद रखिएगा। फी और एला और मिन और अला, इसके बाद जो लफ्ज आता है उसके नीचे जेर पड़ते हैं। तो बादुहुन्ना फिल मदरसति सानिवियति, बादुहुन्ना फिल मदरसति सानिवियति व बादुहुन्ना फिल मदरसति अल मुतवस्सितति, है ना, फी की वजह से देर पड़ेंगे दोनों लफ्जों पर, मौसूफ सिफत है ये। अच्छा, अब नंबर 10 का जुमला पढ़िएगा, नंबर 10 का जुमला पढ़िएगा। अलका बनातुन या लैला, क्या पढ़ेंगे हम? अलका पढ़ेंगे कि अलकी पढ़ेंगे? अलकी अलकी बनातुन या लैला। लैला जो है ना, अरबों के अंदर लैला जो है ना नाम होता है, लड़कियों का नाम होता है अरबों के अंदर। हमारे इंडिया पाकिस्तान में इस तरह का नाम नहीं रखते लैला, और जो है ना, लेकिन अरबों के अंदर नाम रहता है ऐसा लैला। और अजीब अजीब लोगों के ईमान और लैला और अजीब गरीब नाम रखते हैं कि आप, हमारे उर्दू में नहीं रखते बहुत सारे नाम ऐसे, ईमान नाम नहीं रखते आमतौर पर, लैला नाम नहीं रखते, है ना। अरबों में बड़ा कॉमन है ये लफ्ज लैला, है ना। अच्छा, तो अलकी बनातुन या लैला, ऐ लैला, क्या मतलब हो रहा है इसका? अलकी बनातुन या लैला, क्या आपकी बेटियां हैं? क्या आपकी बेटियां हैं? ऐ लैला, आपकी कोई बेटियां भी हैं? क्या आपकी बेटियां हैं? तो उसने क्या जवाब दीजिएगा, क्या कहा बताइएगा। नाम ली बनातुन किबारुन, क्या कहा उसने? मेरी बड़ी बेटियां हैं। जी, मेरी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, मेरी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, ये बड़ी बेटियां हैं, है ना। बहुत सारी बेटियां तो हम दोनों कह सकते, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो किबारुन देखिएगा, बिंतुन की जमा बनातुन और कबीरुन या कबीरतुन दोनों की जमा जो है ना किबारुन। तो कबीरुन की जमा भी किबारुन, तो मुअन्नस और मुदक्कर दोनों के लिए किबारुन। अच्छा, अब इस जुमले को पढ़िएगा। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियाती, हाँ, क्या कहा उसने? वो यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, तालिब इल्म है, जी, वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियाती, और वो जो है ना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स है। और 11 और 12 का जो है ना जुमला पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर खत्म करेंगे इसी पर हम। मन हाउलाई निसाउ तिवाल, वेरी गुड, तिवालु, जी, अतिवालु निसाउ मौसूफ सिफत है, ये मौसूफ है, ये सिफत है, और मौसूफ सिफत एक जैसे पढ़ेंगे हम, है ना। दोनों पर पेश है, इस पर तो इस पर भी पेश पढ़ेंगे। तो क्या मतलब है मन हाउलाई निसाउ तिवाल का? निसाउन क्या लफ्ज है, बता सकता है कोई मुझे? औरतें। हाँ, इसका वाहिद क्या पढ़ा हमने? इसका वाहिद क्या पढ़ा हमने? मरअतु, मरअतुन या इमराअतुन दोनों है। मरअतु जी, इमराअतुन या मरअतुन दोनों लफ्ज है, दोनों पढ़ सकते हैं उसको हम, दोनों पढ़ा जाता है अरबिक में। तो इमराअतुन की जमा निसाउन, इमराअतुन की जमा निसाउन, और रजुलुन की जमा रिजालुन। ये अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा, रजुलुन की जमा रिजालुन और इमराअतुन की जमा निसाउन, ये दोनों लफ्ज लिखिएगा, है ना, ऐसे जमा लिखिएगा इसकी। अच्छा, तो मन हाउला इन निसाउ तिवालु का मतलब क्या होगा? ये लंबी औरतें कौन है? ये लंबी औरतें कौन है? लंबी औरतें कौन है? कौन है? तो जवाब बताइएगा, क्या जवाब दिया हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, क्या कहा उसने? हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, ये सब अमरीका की फीमेल डॉक्टर्स हैं।
जी ये सब कौन है, अमेरिका की डॉक्टर से, ये अमेरिका से, ये जो सब डॉक्टर है ये सब अमेरिका से इनका ताल्लुक है, ये सब अमेरिका से है ना। और आखिरी जुमला पढ़िएगा 12 नंबर का, अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा। क्या मतलब है इसका? तमाम डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर हॉस्पिटल चली गई हैं, हॉस्पिटल से निकल हॉस्पिटल गई, से बाहर, जी निकल गई हैं, निकल गई हैं, खरजना निकल गई। जी अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा, डॉक्टर जो फीमेल डॉक्टर्स थी वो हॉस्पिटल से निकल गई। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा ज़हबना खरजना, है ना, ज़हबना ऊपर पढ़ा है, वही पैटर्न जो है ना खरजना, है ना। अगर 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 मेल डॉक्टर होंगे तो हम कहेंगे अल अतिब्बाउ खरजू, क्या कहेंगे? अगर मेल डॉक्टर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? अल अतिब्बाउ खरजू मिनल मुस्तशफा, क्या कहेंगे हम? अल अतिब्बाउ खरजू मिनल मुस्तशफा। तो अच्छा, वेरी गुड। तो खराजा को इस्तेमाल, जैसे कि हमने ज़हाबा को इस्तेमाल किया, तो प्रैक्टिस करना चाहिए हमें कि भाई एक मर्द बाहर गया तो क्या कहेंगे हम? खरजा। खराजा, वेरी गुड। एक औरत बाहर गई तो क्या कहेंगे हम? खरजत। खरजत, खरजत, जी। अगर कहना होगा कि इमाम साहब मस्जिद से बाहर गए तो कैसे कहेंगे हम? खरजा इमाम, अल इमामु, खरजल इमामु इमामु मिनल मस्जिद। दोबारा कहिएगा, खरजल इमामु मिनल मदरसती मिनल मस्जिद, खरजल इमामु मिनल मस्जिद, खरजल इमामु मिनल मस्जिद। फातिमा किचन से बाहर गई तो कैसे कहेंगे हम? खरजत फातिमातु मिनल मतबखी। फातिमातु मिनल मतबखी, वेरी गुड जी। खरजत फातिमातु मिनल मतबखी। खरजत, औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती, उन, है ना, एक दो, है ना, उन की आवाज नहीं आती औरतों के नामों पर, उन की आवाज, उन अन इन नहीं, एक जबर एक देर पे एक पेश ही आता है, एक जबर और एक पेश आता है, देर भी नहीं आता है। औरतों के नामों पर देर नहीं आता कभी भी, और औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती। फातिमातुन नहीं कहेंगे कभी, फातिमातु, आयशतु, है ना, एक ही पेश या एक ही जबर पड़ेंगे। अच्छा, तो खरजल इमामु मिनल मस्जिद और खरजत फातिमातु मिनल मतबखी, है ना। और अत्तालिबु खरज मिनल फसली, अत्तालिबु खरज मिनल फसली, और अत्तुल्लाबु खरजू मिनल फसली। हाँ, अत्तुल्लाबु खरजू, अत्तुल्लाबु खरजू मिनल फसली। जी। तो ये जो है ना पैटर्न याद रखना है हमें। तो इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ये जो है ना वर्ब जो है ना, वर्ब का जो है ना, इसकी प्रैक्टिस करना है हमें इंशाल्लाह। तो बस इसी पे खत्म करते हैं हम आज की क्लास को इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक से दोबारा जो है ना, ये यहाँ पर हम जो है ना, नेक्स्ट वीक में हम जो है ना पेज नंबर 68 के अंदर पढ़ेंगे हम, है ना, इसके अंदर, ठीक है ना। एक औरत को हरीम भी बोलते हैं जी, ये एक औरत को हरीम भी बोलते हैं। हाँ, ये स्पोकन में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। जी शुक्रिया। हाँ, तो हम अपनी बात को यहीं पर खत्म करते। कोई किसी के एक दो सवाल हो तो ले सकते, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अगर कोई बात करना चाहे या कुछ वो करना चाहे तो हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगले क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर जो है ना इंशाल्लाह मजीद चीजें अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह मैं कल वीडियो डालूंगा रिवीजन का आप लोगों को, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि जो है ना आपको चीजें और भी मजीद समझ में आए। जो भी पढ़ा है हमने इंशाल्लाह उसका रिवीजन आपको जो है ना वीडियो के जरिए कराऊंगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। ये यूट्यूब में रहेगा, यूट्यूब का लिंक मिलेगा। जी बिल्कुल ग्रुप में डालूंगा मैं जी इंशाल्लाह। हय्याकुम अल्लाहु अजर। हय्याकुम, अल्लाह यबारक फीक। जज़ाकल्लाहु खैर। सलाम जज़ाकल्लाह। अल्लाह यबारक फीकुम।